جب پودے Assalamu alaikum everyone from the Fortune License School and College and Pala Agro-Tourism and Economy Resort. We have an important topic today, which is کہ جب ہم پودے لگاتے ہیں تو ان کی اگر قریب پودے لگائیں اور تو اس سے جو ان کی ڈینسٹی سے کیا فرق پڑتا ہے ان کی پروڈکشن کے اوپر، اور اگر باغ آپ لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر اس کا کیا فرق پڑتا ہے. تو فار دیٹ ہمارے جو آج جو ایمرنٹ سائنٹسٹ ہیں باری سے، ہی ول بی جوائننگ اس، اور ہم اس کے اوپر وہ بات چیت آج کرنا چاہیں گے. تو although I'm in it's a very important topic because جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگے کہ جی کتنے پودے ہونے چاہیے کتنی جگہ کے اندر اور ان کے کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی، تو وی کین کو تھوڑا سارا چیزوں کو ٹھیک نہیں ہو سکتی. So I'll request Dr. Umar to please take over the today's meeting and let's start without wasting further time. Thank you. السلام علیکم اور پارٹیسپینٹس. ابھی ہمارے اسپیکر تو جوائن نہیں کیے انہوں نے، میڈم فائزہ نے آج کرنا ہے شیڈو اسپیکر. تو میڈم شروع کر دیں، میں نے ہوسٹ بنا دیا ہے، آپ کو اسکرین شیئر کر دیں. جی میری آواز کلیئر ہے کیا؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میڈم پلیز اس طرح کہ ابھی تک اسپیکر نے جوائن نہیں کیا جنہوں نے آج ٹاک دینی تھی، تو میرے خیال آج میڈم فائزہ کی ہے وہ شیڈو ایز اے شیڈو اسپیکر. انہوں نے جی سر میم فائزہ کی ہے، شی اسٹارٹنگ. ان کو میں نے ہوسٹ بنا دیا، تو پلیز وہ جی سر میم فائزہ نے اسٹارٹ کر دیا، پلیز آپ چلیں. جی میڈم فائزہ آپ کا مائک آف ہے. اوکے سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آواز اب کلیئر ہے آپ کی. جی جی تھینک یو سر. آج ہم پلانٹ ڈینسٹی کے بارے میں، ہماری جو ٹاپک ہے وہ امپیکٹ آف پلانٹ ڈینسٹی آن انکم اینڈ کوالٹی آف فروٹ کراپس. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم واٹ از پلانٹ ڈینسٹی، کہ پلانٹ ڈینسٹی ہے کیا. Plant density basically is the number of individual plants present per unit of ground area. It is most easily interpreted in the case of monospecific stands, where all plants belong to the same species and have germinated at the same time. In a simple way, plant density اگر ہم بہت آسان لفظوں میں کہیں تو ہمارے کھیت
اور ہمارے جو باغات ہیں وہ اس کی ایک مثال ہیں. ہم ان کی ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طریقے سے ایک ہی وقت میں ایک ہی کراپ کو یا ایک ہی پھلوں کی فصل، سبزیوں کی یا کوئی بھی ایسی کاشت کی جاتی ہے، وہ ایک ہی وقت میں بڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ان کو بیجا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اس میں آ جاتے ہیں کہ انڈیویجولی بھی ہوتے ہیں وہ پلانٹس، الگ الگ بھی ہوتے ہیں اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں. سیکنڈ آ جاتا ہے ہمارا کانسیپٹ آف پلانٹ ڈینسٹی. Plant density is defined as a number of plants present per unit area of ground in nature. Plant density can be especially high when seeds present in a seed bank germinate after winter, or in a forest after a tree fall opens a gap in the canopy. اچھا یہاں پر ہم اس کانسیپٹ کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہم یہ کانسیپٹ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سیڈز جو ہیں وہ جرمنیٹ ہوتے ہیں ونٹرز میں، سمرز میں، اور تمام ہمارے جو ویدرز ہیں وہ ان کے اوپر کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اور ان کی گروتھ کس طرح ہوتی ہے. اب جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کی گروتھ بنسبت بڑے پودوں کے ایزی ہوتی ہے، اور جو بڑے پلانٹس ہیں یا ہم ان کو کہہ لیں کہ جو ہمارے درخت ہیں وہ زیادہ ان کو ریسورسز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں بنسبت چھوٹے پودوں کے. اب اس میں ہمارا فوٹوسینتھسس بھی کام آتا ہے. جتنی اچھی ان کو ماحول ملے گا، جتنا اچھا ان کو ماحول ملے گا، جتنی اچھی ان کو آب و ہوا ملے گی، اسی حساب سے وہ گرو کریں گے. امپیکٹس آف پلانٹ ڈینسٹی میں ہمارے پاس 4 ہمارے پوائنٹس آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ امپروو فوٹوسینتھسس گروتھ، پھر لائٹ ڈسٹریبیوشن، پروفیٹیبلٹی آف کراپس اینڈ جرمینیشن پرسنٹیج. اس میں فوٹوسینتھسس گروتھ کیا ہے کہ سب کو ایکولی فوٹوسینتھسس، آپ کو پتہ ہے اسٹوڈینٹس کیا ہوتا ہے؟ واٹ از فوٹوسینتھسس؟ جی ویری گڈ. فوٹوسینتھسس بیسکلی کام آتا ہے ہمارے پودوں کو گرو کرنے میں. بالکل صحیح کہا ہے. تو اب اس میں یہاں ہے کہ سب جتنی اچھی ان کو آب و ہوا میں آ جاتا ہے سارا، کہ جتنا اچھا سن لائٹ ان کو جتنی ضرورت ہے ان کی پودوں کی وہ ملے گی، اتنی اچھا وہ گرو کریں گے. اب اس میں لائٹ ڈسٹریبیوشن آ جاتا ہے کہ لائٹ ڈسٹریبیوشن کے ہر پودے کو اس کے حساب سے لائٹ ملے، لائٹ روشنی یعنی کہ سورج کی روشنی اس کے حساب سے ملے. باہر کے ممالک میں جو فارم ہاؤسز بنائے جاتے ہیں وہ انڈور بھی ہوتے ہیں. اب وہ انڈور پلانٹس میں بھی ان کے لیے وہ فل کرتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ہر پودے کو روشنی، ہر پودے کو اس کی آکسیجن، ہر پودے کو ہر چیز اس کو کمپلیٹ ملتی رہے. تو یہاں پر ہمارے جب اوپن ایئر ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ ڈسٹریبیوشن ان کی فل ہونی چاہیے. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں پروفیٹیبلٹی آف کراپس، کہ کتنی کراپس لگی ہوئی ہے اور کتنے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر مطلب ہم فل جو ہے وہ فوٹوسینتھسس، لائٹ ڈسٹریبیوشن، ہر چیز جو ہے وہ اس کے کراپس کے حساب سے جتنے اچھے وہ سارا کچھ گروتھ کرنے میں مدد ملے گی، اتنا ہی اچھا ہماری کراپس جو ہے وہ گرو کریں گی اور ہمیں اتنا ہی پروفٹ ہوگا. جی میم. اسکرین شیئر ہونا بند ہو گئی ہے. جی جی سر پلیز.
किस स्लाइड पे? नेक्स्ट है हमारा फूड डेंसिटी. फूड डेंसिटी में हमारे एग्नोमिक फैक्टर आ जाते हैं. फूड डेंसिटी में जो इन एग्नोमिक फैक्टर. नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्लांटिक डेंसिटी. यस मैम. इसमें सब में सर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्पेशीज प्लांटिंग और ग्रोथ, ये सब हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर पे असरअंदाज होते हैं. अब इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डेंसिटी ऑन इनकम एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स. तो जितना अच्छा हमारी ग्रोथ होगी, जितनी अच्छी जमीन मिलेगी हमारी क्रॉप को, जितना अच्छा हम फसल करेंगे, जितना अच्छा उसको आबो हवा मिलेगी, उतनी अच्छी हमारी क्रॉप्स होंगी. और इसी तरह से फ्रूट क्रॉप्स भी होंगी. फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एरिया थ्रू इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उसमें भी हमें जितना अच्छा सर हमारे पास अगेन वही बात बार बार आती है कि जितने इंक्रीजिंग हमारी, उसी तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी उसी तरह अच्छी होगी कि अगर हमारी जमीन जो है वो हम इस काबिल होगी कि वो हमें एक अच्छी क्रॉप दे सके. और अगर अच्छी फसल होगी तो ऑब्वियस हमारी इनकम अच्छी होगी, हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमारे फसलें इसी तरह बाहर के ममालिक में इर्द गिर्द सारी जगह पर पहचानी जाएंगी. और इसकी बड़ी मिसाल तो हमारे आम है कि वो हमारे पूरे ममालिक में हमारे आम सबसे बेस्ट आम होते हैं. अब impact of plant density on the fruit yield and income. Plant density controls establishment success yield and ultimately ultimately the profitability and income of a crop, and it determined by the sowing rate and germinate percentage. Increasing plant density is the most important way to increase per hectare yield potential in food crops in the past decade. सेम वही बात सर बार बार आती है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से, हमारी इनकम उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस तरह से हमारी क्रॉप होगी. और पुराने जब हम पास्ट डिकेड्स की बात करें तो उसमें भी हमारे पर हेक्टर जिस तरीके से फूड क्रॉप्स लगाई जाती थी, उसी तरह से इंक्रीजिंग भी उनकी प्लांट डेंसिटी, जमीन की हमारे इसमें सब चीजें फैक्टर कर जाती हैं. हमारे पानी और खाद और सूरज की रोशनी, आबो हवा, मट्टी, ये सब उसके अंदर हमारे लिए हमारी फसलों को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं. So sir, it's over to you now. Please, अब आप हेलो. Thank you very much, मैम फायजा. बेसिकली हम बच्चों को जो बताना चाह रहे हैं वो यही हम बताना चाह रहे हैं, बहुत बेसिक किस्म की नॉलेज कि व्हाट हैपेंस कि जब प्लांट डेंसिटी ज़्यादा हो या अगर प्लांट डेंसिटी कम हो, और इसका इम्पैक्ट जो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या होता है. डेफिनेटली ये जो इम्पैक्ट है ये इसकी फ्रूटिंग पे भी आता है, और जब फ्रूटिंग पे आता है तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक्स है वो सफ़र करती है. तो इट वाज वेल डिलीवर्ड टॉक, एंड हमें एक छोटा एक बेसिक आइडिया एक हमें हो गया कि हाउ टू
grow plants, and what are the important factors which are to be kept in mind while you see taking into account while planting a plant or a forest plant fruit forest for that matter. बाग जब हम लगाते हैं, पौधे हम जब लगाते, तो important thing is उनकी photosynthesis, उनका environment, उनकी जो ग्रोथ की जो स्पेस है, जो उनका जो प्लांट का, अगर आप ये देखें आम का जब प्लांट हम लगाते हैं तो वो उसकी गुठली और वो जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है वो कितना छोटा सारा होता है, बट जब वो बड़ा हो जाता है, हम अपने स्कूल में देखें हमारा जो जामुन का दरख्त है जिसके ऊपर हमने वो बनाया हुआ है ट्री हाउस जो बनाया हुआ है, वो कितना बड़ा जामुन का दरख्त, बट उसी के जब वो बीज नीचे गिरते हैं तो वो कितने छोटे छोटे उनसे पौधे बनते हैं। और अगर यही पौधे एक जगह पे इतने बहुत सारे बड़े हों तो वो बड़े नहीं हो सकेंगे। और फिर उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वो लड़ाई हो जाएगी, नेचर बीच में आ जाता है कि जहाँ पे वो जो पौधे वो ज्यादा ताकतवर होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे, वो पौधे जो हैं वो उगेंगे और वो आगे जाएंगे और फिर कोई चरण प्रण खा लेंगे क्या। So these are very important things which we all must be knowing. So excellent effort. और मैं चाहूंगा कि कोई आप बच्चों से अगर पूछें कि इन्होंने अगर कोई बाग विजिट किया है तो उसके अंदर पौधे से पौधे का फासला इन्होंने अगर कोई ऑब्जर्व किया है, कोई बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होती है, तो कितना कितना फासला होता है एक दरख्त से दूसरे। ओके सर, ओके सर। बाग गए, बाग में गए, या आप देखी हो जैसे आप करते हैं, लेकिन जब हम वाटरमेलन या मेलन की बात करते हैं तो वो खेत होते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो कभी आपने देखा है ऐसा? बेटा कभी भी नहीं देखा हुआ जी? बताएं अभिराज। जी मैम देखा मैम। जी मैम देखा हुआ है, हमारे गाँव में कितने आपके दरख्त लगा हुआ है। जी जी और बताएं। बस आपने सिर्फ यही देखा है? जी बताओ। जी मैम देखा हुआ है, हमारे नाना की खेत है, वहाँ पे और का भी दाम है, ठीक है। उसके बाद मैंगो का भी है, ठीक है, बनाना का भी है और वाटरमेलन भी है। बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और किसने बाग देखे हैं? मैंने एक बार जब गाँव गई थी तो मैंने बाग देखा था, उसमें ना वो इस टाइप की कोई चीज थी, वो चला रहे थे और फिर उसके अंदर वो वाटर डाल के कर रहे थे, बीज लगा रहे थे और वाटर डाल रहे थे प्लांट। कितना डिस्टेंस होता है उनमें, ये आपने देखा है? कौन बताएगा? जो बाग में वो लगे हुए होते हैं उनमें कितना डिस्टेंस ही?
प्लीज मतलब आपने कभी उसको नापा है? नहीं, कश्यप का कहना है कि जिस तरह मैं खड़ी हुई हूँ और जिस तरह नवीन खड़ा हुआ है इतना नहीं। अच्छा, मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो कि जितना आपका और आपके भाई का डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस से दरख्त लगे हुए होते हैं। और जब उनके ऊपर वो आ जाते हैं याद होगी कि उनके जो ये थोड़ा सा गैप रह जाता है नीचे से जो उनकी बोतल है वो कितने गैप देते हैं फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा गैप रह जाता है और ऐसे जैसे अटैच होता है। ओके, और कौन बताएगा? जी मान, आपने कभी बाग का विजिट किया हो, आपने देखा हो? टाइम्स हम जाते हैं सरगोदा वगैरह तो हम देखते हैं वहाँ पे रोड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे प्लांटेशन हुई भी होती है खुले खुले एरियाज में। तो आप मुझे बताओगे कि आपने क्या देखा है बाग में? कितने डिस्टेंस पे आपने वो देखे हैं प्लांट्स लगे हुए आपको? Allow me to button, please. Iman bache, Iman, if you can hear me. ताकि उनकी ग्रोथ सही हो, उनको पानी वगैरह सही हो। और मैंने देखा था इसी तरह के सिस्टम के और वाटर वगैरह दे रहे थे सन टाइप का बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे अब हम यहाँ पे जब जर्मिनेशन की बात करते हैं तो आप उसमें क्या आएगा, उसमें सीड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कि उसमें सीडलिंग कैसे होगी। तो बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि ठीक है नहीं, तो उनके सीड्स दोबारा हम लगाएंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ईमान बचे, अगर आप अपने राइट साइड पे देखो, आपके पीछे जो है 2 फ्लावर्स बने हुए हैं। ईमान बचे, अगर आप अपने राइट पे देखो तो 2 फ्लावर्स बने हुए हैं आपके। राइट पे देखो तो फ्लावर्स बने हुए हैं, हाँ रखे ना। अब ये देखें, अभी ये 2 फ्लावर्स जो हैं इनका आपस में डिस्टेंस आप देखें कि जहाँ पे ऊपर इनका फूल बना हुआ है और नीचे जो इनका स्टेम है वो ये आपस में फासला। बच्चे आवाज आ रही है आपको? मान बच्चे आवाज आ रही है आपको? आई एम सॉरी, आई एम इन हॉस्पिटल, Yes, तो sir. मेरा आवाज शायद आपको ना आ रही हो, बट इवन देन अगर आप ये पौधे देखें जो आपके पीछे तस्वीर भी जो बनी हुई है, तो इन पौधों का आपस में जो डिस्टेंस है, इनका स्टेम देखें कितना पतला से, और ऊपर आप इनके देखें फूल कितने बड़े बड़े से हैं, सेम वे इनके पत्ते। सो कितना बड़ा इनका ऊपर से वो पत्ते हैं और फूल हैं, उनकी रेशो के हिसाब से स्टेम कितना पतला सा है। तो ये अगर और ज्यादा करीब हों तो इनको ऊपर इसी ग्रो करने में इनको प्रॉब्लम होगी। अगर आप नीचे घास देखें, घास कितनी डेंस लगी हुई है, जबकि आपके ये वाले जो पौधे हैं जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं, इनके आप स्टेम्स देखें तो ये आपको पता अंदाजा हो रहा होगा कि जी घास लगने में और जिनके ऊपर फ्लावर्स आने हैं और जिनके ऊपर फ्रूट आने हैं, उनका आपस में डिस्टेंस कितना मैटर करता है और कितना ज्यादा होता है। नेचुरल अल्लाह मियां ने किस तरह से वो बनाया हुआ है। अब देखो ना, जिसके ऊपर ये बीज उड़ रही हैं और वो बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, नीचे घास जो बना हुआ है वो आपस में बिल्कुल करीब करीब है, बट जिनके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं ये इनका डिस्टेंस आपस में स्टेम टू स्टेम जो डिस्टेंस है, तने से तने का डिस्टेंस वो ज्यादा है। तो ये अलमिया का वो है, बिकॉज अगर ये आपस में करीब करीब होंगे तो इनकी बढ़ोतरी नहीं होगी, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये सर आपने कहा ना इनको ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी और ये सही तरह ग्रोथ नहीं कर सकेंगे ना, इनको सही प्रोवाइड भी नहीं होंगे, पानी वगैरह सनलाइट वगैरह भी प्रोवाइड सही नहीं होगी तो ग्रोथ में प्रॉब्लम करेंगे। से
Kumar sir, I'll request you to please take on the meeting now. प्रोसेस में ठीक नहीं होगा. Thank you, sir. जी माइक बंद है, आवाज नहीं है. जी डॉक्टर उमर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. जी अब आवाज आ रही? जी सर, अब आ रही है. तो ये जो अभी हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया है प्लांट डेंसिटी का, तो इसमें हमें ये पता लगता है कि हम आमतौर पे जब प्लांटेशन करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो कितने फासले पर पौधे लगाए जाते हैं. तो आमतौर पे हम 10 फुट के फासले पे पौधे लगाते हैं. यानी जैसे हम दरख्त लगा रहे होते हैं तो 2 दरख्तों के बीच में फासला जो है वो 10 फुट का रखते हैं. तो इस तरह होता ये है कि तकरीबन जैसे आप लोगों को पता हो, हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी कि जो खेत होते हैं वो एकड़ों में तकसीम किए जाते हैं. तो ये जो हमारे यहाँ शहरों में हम जिन घरों में रहते हैं, इनका जो साइज है या एरिया है वो बदलों और किनालों में हम उसको कहते हैं कि हमारा घर 1 किनाल का है या हमारा घर 10 मरले का है. तो इसी तरह जो गांव में ज़मीन जब उसको मेजर किया जाता है या ज़मीन को साइज नापा जाता है तो उसको एकड़ में कहा जाता है. 1 एकड़ जो होता है उसके अंदर 8 किनाल होते हैं और आमतौर पे 1 एकड़ में कोशिश की जाती है, आम किसान है कि वो 1000 दरख्त लगा लें. तो और उनमें सारों में तकरीबन फासला जो होता है दरख्तों में 8 से 10 फुट का होता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने हम दरख्त करीब लगाएंगे तो उस हिसाब से दरख्त ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पास जो फल होगा दरख्तों का वो हमें ज़्यादा मिलेंगे. मगर उससे हमें नुकसान ये होगा कि जब एक दरख्त के आसपास ज़्यादा दरख्त लगे होंगे तो एक दूसरे के साए की वजह से उन दरख्तों के तने जो हैं वो बारीक रहेंगे, वो उतने मोटे नहीं हो सकेंगे और उसमें इतनी लकड़ी पैदा नहीं होगी. अगर फासला ज़्यादा होगा तो उसमें ये होगा कि हमारे पास पौधे कम होंगे और उनकी नशोनुमा तो बेहतर होगी, मगर पैदावार कभी उतनी नहीं होगी जितनी ज़्यादा दरख्त लगाते तो उस वक्त होती. तो इस तरह हमें देखना
ज़रूरत पड़ती है देखने की कि हम फासला ज़्यादा रखें या कम रखें। तो पिछले साल भी हमने एक ज़िक्र किया था कि एक टेक्नीक होती है, जापानी टेक्नीक कहलाती है, जिसको मियावाकी कहते हैं। मियावाकी इधर इस्लामाबाद के अंदर भी मियावाकी फॉरेस्ट लगाए गए हैं, और लाहौर में भी लगाया गया है, कराची में भी है, और पूरे पाकिस्तान में इसकी कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से मियावाकी फॉरेस्ट या मियावाकी जंगल लगाया जाए। मियावाकी एक जापानी प्रोफेसर का नाम है जिन्होंने एक तरीका ईजाद किया था कि कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जा सकें। तो जब मियावाकी फॉरेस्ट लगाया जाता है तो उसको थोड़ी सी जगह पे सिर्फ 2-2 फुट के फासले पर हम दरख्त लगाते हैं। तो दरख्तों के बीच में फासला बहुत कम होता है, और इस वजह से थोड़ी सी जगह पर ही बहुत सारे दरख्त लग जाते हैं। मगर उससे एक थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि दरख्त जल्दी बड़े तो हो जाते हैं, मगर उनके तने ज़्यादा मोटे नहीं हो सकते। फ़ायदा ये होता है कि जल्दी बड़े होने की वजह से उन पे बर्ड्स वगैरह जल्दी आ जाते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, एक अच्छा माहौल बन जाता है, और परिंदे भी उनके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो मियावाकी का लफ्ज़ आप लोग याद रखिएगा, और इसको एक बड़ी कामयाब टेक्निक दुनिया में इसको कहा जाता है। और जब भी कभी हमें जल्दी दरख्त लगाने पड़ते हैं तो हम मियावाकी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मियावाकी टेक्निक के अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2-2 फुट के फासले पर दरख्त लगाए जाते हैं। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहले 1-2 लेक्चर पहले हमारा लेक्चर हुआ था कंपोस्ट के ऊपर, तो उसके अंदर ज़मीन में कंपोस्ट भी डाली जाती है। मियावाकी का अगर आपने जंगल लगाना है तो मैं आपको आसान तरीका ये बताता हूँ कि तकरीबन 3 फुट तक ज़मीन खोदी जाती है, उसमें भूसा डाला जाता है, और ये जो गन्ने का आपने देखा होगा, गन्ने के रस की रेहड़ियाँ शहर में होती हैं, तो वहाँ पे गन्ने का जो फोक बच जाता है, जब जूस निकालने के बाद गन्ने का बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसको और कंपोस्ट को मिलाया जाता है आपस में, और उसमें चावल का जो एक चावल का हम चावल खाते हैं जो उसका जो कुछ हिस्सा उसका खेत से ज़ाया हो जाता है, उस हिस्से को भी उसमें मिला देते हैं। इन तीन चीज़ों को मिक्स करके ज़मीन पे डाल देते हैं, और उसके अंदर 2-2 फुट के फासले पे दरख्त लगा दिए जाते हैं। तो एक आसान तरीका मियावाकी दरख्त लगाने का ये है, और उसमें दरख्त सारे लगाए जाते हैं, फलदार दरख्त भी लगाए जाते हैं, और इसी तरह जो दूसरे लकड़ी वाले दरख्त हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो इन सारे दरख्तों की वजह से वो थोड़ी सी जगह पे बहुत सारा एक किस्म का जंगल बन जाता है। तो प्लांट डेंसिटी का हमने आज देखा कि प्लांट डेंसिटी का मतलब ये है कि कितने ज़्यादा प्लांट्स कितने थोड़ी सी जगह पे है। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी कि आमतौर पे 1 एकड़ में कितने दरख्त लगाए जाते हैं, तो 1 एकड़ में 1000 दरख्त आमतौर पे लगाए जाते हैं गाँव में। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 1 एकड़ जो होता है वो 8 कनाल के बराबर होता है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शहरों में घर जो है वो 1 कनाल का होता है या 2 कनाल का होता है, या उससे कम का होता है। तो 1 एकड़ इतनी जगह होती है कि उसके अंदर 1-1 कनाल के 8 घर उसपे बनाए जा सकते हैं। तो आम तौर पे जो ज़िम्मेदार लगाते हैं वो 1 एकड़ में 1000 पौधे लगा देते हैं। और अगर हमने प्लांट डेंसिटी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मियावाकी की तरह का जंगल लगाया जाए, तो फिर हम 2-2 फुट के फासले पे पौधे लगाते हैं। जैसे पिछले साल हमने प्लांटेशन की थी तो उसमें हमने पौधे काफ़ी करीब रखे थे, और उसकी वजह से पौधों को आपस में एक दूसरे से फायदा भी होता है, साया भी कुछ मिल जाता है, कुछ जो खुराक है वो एक दूसरे से एक जगह से एक पौधे से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, और उसकी वजह से पौधे जल्दी उग जाते हैं। तो शहरों में जब भी फॉरेस्ट लगाया जाता है तो उसको हम
मियावाकी की तरह से लगाते हैं, और गांव में आमतौर पे जो फॉरेस्ट लगाते हैं, या अगर आपने दरख्त लगाने हैं कि उनको काटा जाए और उनसे लकड़ी हासिल की जाए, तो आमतौर पे 10 फुट के फासले की वजह से तकरीबन 1000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। इसमें एक और भी चीज़ ये भी है कि जब आप एक ही जगह पर ज़्यादा पौधे लगा देंगे, तो एक तो ये है कि जब हमें उसके दौरान, जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बाग लगा होता है, बाग के अंदर बहुत सारे पौधे होते हैं, तो अगर 2 दरख्तों के बीच में 10 फुट का फासला हो, तो फिर हम उसके बीच में से ट्रैक्टर गुजार सकते हैं। ट्रैक्टर जब गुजरेगा तो वो उसमें हम दरख्तों के बीच में फसल भी लगा सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बाग होता है और उस बाग के अंदर दरख्त लगाए जाते हैं। दरख्त लगाने का मकसद ये होता है कि हम उनसे लकड़ी हासिल करें। ये आप लोग जैसे इधर जो आपके टेबल्स हैं, आपकी कुर्सियाँ हैं, तो ये सारी लकड़ी से बने हुए हैं। तो ये लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी दरख्तों से आती है, और एक दरख्त आम तौर पे 4 या 5 साल में इतना बड़ा हो जाता है कि उससे आप लकड़ी हासिल कर सकें। तो जो लोग कारोबार करते हैं दरख्तों का या लकड़ी का, वो इस तरह से करते हैं कि जैसे इस साल वो पौधे लगा देंगे, फर्ज करें 1 एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर 1000 पौधे लगा देंगे, और 4 साल बाद या 5 साल बाद सारे पौधे बड़े हो जाएंगे, और 5 साल बाद हर जो पौधा है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उससे लकड़ी की जा सके। और लकड़ी तकरीबन आप कह सकते हैं 10-12 मन वजन है, इतना जिसको हम समझें कि 400 किलो वजन की लकड़ी एक तरफ से मिल सकती है। तो उस लकड़ी को बाद में बेच के तो किसान जो है ना वो फायदा उठाता है, पैसे उसको मिल जाते हैं, और उनसे वो दोबारा से खेत के अंदर फसल लगाता है या और दरख्त लगा लेता है। तो ये इस तरह से किसान का जो कारोबार है या बिजनेस है वो चलता रहता है। अब हमने पहले जैसा देखा कि 10 फुट का फासला है दरख्तों के बीच में, तो उसमें हम कई दफ़ा ये करते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि प्लांट डेंसिटी कम है, सिर्फ 10 फुट के बाद एक दरख्त आता है, तो दरख्तों के बीच में फसल भी लगाई जा सकती है। तो ऐसा होता है कि 4 साल बाद हमें दरख्त से लकड़ी मिलनी है, तो उस 4 साल के दौरान हम हर साल 2 या 3 फसलें भी लगा सकते हैं। आजकल अभी जून जुलाई का महीना है, तो इस महीने में लोग जो है वो मकई की फसल लगा देते हैं, और 3 महीने में मकई या मेज़ या कॉर्न जिसको हम कहते हैं वो तैयार हो जाती है, और उसके बाद फिर गंदम लगाई जाती है, और उसके बाद फिर और दोबारा भी मकई या कोई सब्जी लगाई जा सकती है। तो एक साल में 3 फसलें भी उससे हासिल करते हैं। यानी एक बाग आपका जिसमें आपने दरख्त लगाए हुए हैं 10-10 फुट के फासले पे, जो उनके बीच वाला बीच जगह जो होती है, बीच वाला जो एरिया है, उसमें फसल लगाई जाती है, वहाँ से गंदम, मकई और या सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इस तरह के जो किसान होते हैं जो कि एक ही एरिया से, जैसे एक ही एकड़ से ना सिर्फ वो दरख्त से लकड़ी हासिल कर रहे होते हैं, बल्कि हर साल दूसरी फसलें भी हासिल करते हैं। तो इस तरह से हमें ये कारोबार के लिए किया जाता है। और इसी तरह जो हम शहर में जंगल लगाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मियावाकी वाला जंगल है। मियावाकी वाला जंगल जो होता है उसका ये फायदा ज़्यादा ये होता है कि शहर में आपको हमें पार्क बनाने होते हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उन लोगों को सांस लेने के लिए, अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की और अच्छे एनवायरनमेंट की, ताकि उनके लंग्स को जो है वो खून की सफाई अच्छी तरह कर सकें और लोग सेहतमंद रह सकें। उसके लिए फिर जो जंगल लगाए जाते हैं उसमें हम प्लांट डेंसिटी कम रखते हैं,
ज़्यादा रखते हैं और जो उनका फासला है वो कम होता है, जैसे 2 फुट या 3 फुट। तो ये हमें ये एक ज़रूरी बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि जब शहर में हमारा मकसद ये होता है ऑक्सीजन पैदा करना और अच्छा माहौल पैदा करना, ताकि लोगों की सेहत में फ़ायदा हो। और जो गाँव में हमारा मकसद आमतौर पे ये होता है कि उससे हम लकड़ी हासिल करें या दरख्तों से फल हासिल करें, जैसे माल्टे का बाग है, आम का बाग है, तो वहाँ से माल्टा, आम वगैरह हासिल करें और साथ ही जो उसके बीच में जगह, दरख्तों के बीच में जगह हो, वहाँ से हम फसल हासिल करें, जैसे गंदम, मकई या सब्जियाँ हैं। तो दोनों तरह से जब हम देखेंगे, जब हम प्लानिंग करेंगे कि हमने कैसे कोई दरख्त उगाना है, तो सबसे पहले हम अपने कॉपी के ऊपर या कागज़ के ऊपर उसको हम उसकी शेप बनाएंगे कि हमारा जो बाग है वो किस शेप का है, और उसमें हम पॉइंट्स लगा लेंगे कि 10-10 फुट के फासले पे। तो उसके ऊपर हम जैसे हम कहेंगे कि 10 फुट का फासला जो हमारे कागज़ के ऊपर 1 इंच का है, तो हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे। तो उससे हमें प्लानिंग हो जाएगी कि हमने इतने दरख्त लगाने हैं हर, और उस बाद में हम उस दरख्त उस हिसाब से ज़मीन के ऊपर प्लांटिंग कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, और साथ ही हमें ये देखना चाहिए कि जब हम अगर फासला बहुत कम है, 2-2 फुट का फासला है, तो उसमें पानी किस तरह उसको दिया जा रहा है, वो भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आजकल एक जो मॉडर्न टेक्नीक है पानी देने की, उसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी का एक-एक कतरा करके सब पौधों को मिलता रहता है। तो जब हम कोई इस तरह का फॉरेस्ट बनाते हैं जो कि इसमें डिस्टेंस काफ़ी कम हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि पानी कम इस्तेमाल हो और हर पौधे को पानी मिलता रहे। उस केस में फिर हम ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करें। तो ये कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमें इस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताई प्लांट इंडस्ट्री के बारे में, और इससे हम किस तरह से शहर में और गाँव में डिफरेंट तरीके से उनको लगा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर हमारी स्टूडेंट ने ड्रिप इरिगेशन का मॉडल बनाया था, तो वो बाकी स्टूडेंट को एलैबोरेट कर रही है कि वो किस तरीके से उसका वर्क होता है, तो वो आपको मैं समझाऊंगी जरा सा। नीन का माइक ऑन कर दें प्लीज। आपने इरिगेशन का मॉडल बनाया था। जाते थे फसलों होती वो उस वजह से उनको पानी, फिर हमने पाइप के थ्रू उनको पानी देना था। हमने साइड के पाइप्स लगाए, उसके बाद उसमें होल्स कर दिए थे हमने। तो पानी और फिर जो हमने पाइप में होल्स किए थे तो पानी शुक्रिया बेटा। मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम खत्म हो रहा है आज हमारी क्लास का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको Thank you very much, everyone. Or thank you very much, Sir Omar. Very kind, everyone, for patient hearing. I hope कि आपको आवाज भी आई होगी और आपको कोई थोड़ी बहुत समझ लगी होगी।